Hi Nidhi, how are you? Hi, good evening, sir. I'm fine. How are you? Yeah, good evening. I'm also good. So you did your articles from NM Razi and Company, right? Yes, sir. Okay, can you let me know a bit more about your firm and your experience there in terms of learning and all? Sure, sir. Hmm. So I'm a newly qualified chartered accountant. I have done my articleship from NM Raji and Company, and this is a mid-sized firm which is located in Fort in Mumbai. So Okay. basically, our firm was primarily into statutory audits of listed and private clients. And me personally, I have been 80% of my articleship. I would say that I was primarily into statutory audits of listed clients only. Okay. Okay. So what do you understand by sampling and its relation with internal control? Can you please explain? Sure, sir. So sampling is basically applying audit procedures to less than 100% of the total items. Okay. And in regards for internal control, I would say internal control is basically the policies and procedures in the company, which make sure that the conduct of the business of the entity is conducted in a more efficient way. So to ensure, or I can say to test those controls that they are being very effective, we will Okay. do some sampling, and they might be different type of sampling. So we might do some random sampling or some cluster sampling or stratified sampling. Okay. What is its relation with internal control? I asked. So the sampling with internal control testing, I would say that it helps us to understand whether those internal controls are working fine or not, or whether they are able to detect or prevent any material misstatements or frauds in the company. Okay, okay. I'll just take you through one of the example. Let's suppose you went for an audit of Reliance Industries. Okay, Okay, based on sir. your preliminary assessment, you found that their control environment is not that much sound. So still, you will Okay. go for sampling method, or you will follow some other course of action. So if primarily we'll always do sampling, but if we have an information or evidence that the internal control systems of the company is not accurate or Okay. not, we cannot rely on it, then definitely we will do some alternative procedures to ensure that we obtain a substantial or appropriate audit evidences. Okay. Okay. What factors you will consider before sending external confirmation? So external confirmation is governed by SA 505. Basically, it is a confirmation from third party. Hmm. So whenever we are sending this external confirmation, we have to ensure that we receive a proper response from them. In case we don't receive a response or an expected response from them, so we can do some alternative procedures to ensure that we confirm those balances. Okay. What is negative confirmations? So it's a confirmation wherein we don't get a response, wherein we have mentioned that if the third party doesn't respond to the confirmation, so we will assume that they agree to the balance in the statements. Okay. You mentioned in your resume that you did some ledger scrutiny. What is the Yes, sir. meaning of ledger scrutiny? So it is to analyze the ledger, whether the amount will verify or will have an analytical view over the ledger. We'll see that what expenses are basically entered into the ledger, or if it is acting accurate or not. Okay, let's suppose that you are auditing any of the entity. You found that the legal and professional expenses has been booked under telephone expense. Okay, So, sir. considering this mistake, consider me as your engagement partner. What thing you are going to discuss with me in relation to this observation? So, as a manager, I would first of all, as an executive or someone who is handling this primarily, I will first ask the management to explain me the reason for this booking of expenses. In Okay. case I don't get an accurate or proper confirmation or reasoning for that, then I will definitely come to you and explain you the whole scenario, and then I'll expect you to take it forward with the management. In case we don't get an appropriate explanation for that. Okay, but what would be the risk? I asked to you that in case they are booking legal and professional expenses in the telephone expenses ledger, what are the risks you will highlight as an So auditor? okay, so maybe they are trying to show that there are not any kind of legal cases against the company. They are trying to hide the liabilities, or they are trying to hide any recent claims that might be
so sorry, that might be made against the company in the court. So yeah, this is one of important the areas that we have to ensure, because a lot of time companies do this to hide any contingent liabilities that might be in the financial statements. Okay, how will you audit revenue? So basically, so for revenue, we'll ensure, first of all, we'll take a walkthrough. We will take some samples, and then we'll do the testing of it. We will make sure that we'll first take some samples and do an inception. We will verify it from the inception to the conclusion of that particular transaction. Also for revenue, we'll do an analysis that whether there is a appropriate growth or decrease in the revenue. We will also match the expenses with the same, whether the ratio of increase in the expenses is also somewhere relevant to my increase in revenue, because whenever my revenue increases, it has a corresponding effect on my expenses as well. So we will make that ratio analysis as well. We'll do that. Other than that, we will match the balances. We will see whether the amount mentioned in the sales invoice is matching with my ledgers. We will make sure the system also has the same amount. Okay. You might be aware that there is substantive procedures as an audit procedure. There is analytical procedures also. Yes, sir. So I just want to ask you that test of details are there, which is a one of the form of substantive procedure. Then why analytical procedures is required? What is unique in analytical procedure? The analytical procedure gives a different perspective. We take financial and non-financial data to analyze the position of the company. Basically, in substantive procedures, we analyze more on the document side, on the transaction part, whereas analytical procedure gives it a different insight, whether the companies have something hidden, or we can use our concept to understand whether there is something hidden behind the amounts or what company is trying to show us. Okay. You have also mentioned that you assisted in drafting the audit report. So, yes, sir. As far as I know, that there are a lot of things that has been copy pasted in audit report. Yes. So, sir. what is the new thing you did in audit report, in form of assistance or drafting, whatever? So, sir, I would definitely make sure that whatever we are reporting, there might not be any inaccuracies in the report. Whatever we are reporting, for example, if numbers we are reporting, then we ensure that the numbers are matching with my financial statements. So I did all of those things, sir. Have you identified or reported any key audit matters in any of your audit assignment? Not yet, sir. Okay. What is the meaning of key audit matter? So these are those matters which, as an auditor, we think that it is really important, and these are the topics that we discussed or areas which we have discussed with the management. Meaning of internal financial controls? So internal financial controls are basically the policies and procedures that a company has to ensure that the business is conducted in a more efficient way, and the company can detect or prevent any fraud or make any material misstatements. What is financial reporting framework? So financial reporting framework is a principle that guides us to prepare financial statements. Okay, and how is it different from accounting standard, or both are same? No, sir. So financial reporting framework and accounting standards are both totally different parts, but an important part for financial reporting. So as I said that financial reporting gives us the principles, whereas auditing standards give us accounting standards give us a detailed view on that principles. It guides us basically to prepare those financial statements. Okay, coming to little bit basics, there are few accounting principles like or I can say concepts, matching concept, prudence concept. Okay. Yes. First of all, tell me what is the logic behind charging depreciation? So, basically depreciation is the value of asset that we are distributing over its useful life. Okay. So any asset would reduce its value because of its normal wear and tear. So depreciation is that. And it's basically, you can see that matching concept also we are applying here, because the revenue that is generated from the depreciation, we are also using the expense. We are also booking the expense as the form of depreciation. Okay, any Indias which you are aware of? Yes, sir, 115 and 108. Okay. Can you give me a brief of 115?
Yes, sir. So India's 115 deals with revenue from contracts. Basically, it helps us to recognize the revenue. You want me to explain you further in that, sir? Tell me the 5 models of revenue Okay, recognition. sir. So 5 steps for revenue recognitions are: the very first step is to identify whether there is any contract or not, Okay. because that is the very basis of any revenue, because there has to be prior a contract. Second step is to identify if there is any performance obligations. Third step is to identify the consideration or the transaction price for that contract. Fourth step would be to allocate that transaction price according to the performance obligation. And fifth step to be recognize those revenue whenever the obligation is performed. Okay. How good you are in taxation, direct and indirect? So I am moderate, bookish knowledge, I would say, because Okay. primarily I've had been Just a always in small statutory. logical question from taxation. Okay. You Sure, sir. imagine statement of P&L. Okay. Okay, sir. So on the right hand side there is sales. Okay. Yes. Left hand side, expense side, there is purchases. Okay. Okay. Sales minus purchases, you have net profit. Okay. Correct, sir. So I'm asking you, on the purchases, when we have purchased, we paid GST, right? Right, sir. On the sales, when we sold goods, we paid GST to government, right? So purchase Yes. we paid GST, sales we paid GST. Okay. And in the net profit part, we are going to pay income tax, right? Right, sir. So why is this government charging tax on purchases, sales, and profit also? Profit is somewhere the part of sales only, right? Don't you think it is Yes, forming sir. or it is a kind of double taxation? So whatever I can understand, I can tell you that GST does not form part of those sales and purchases. It has a separate account that we used it. So according to me, I don't think that we included it No, in. I'm not talking about inclusion. Just consider it as a business. You are doing a business. You purchased Yes, sir. something. You paid GST also, right? Right, You sir. purchase something in which you are going to do trading. You have a trading business. Okay. You paid GST at the time of purchase, right? Right. When you sold it, you raised invoice to the customer. There you will charge sir. GST. You will collect the GST and pay to the government, right? Again, Correct, you sir. are paying tax to the government. Once you paid tax to supplier at the time of purchase, once you paid tax to the government at the time of sale, and then you are paying tax, income tax on your net profit. So this GST is going on purchases, GST is going on sales, and income tax is going on profit. Can you justify that it is not a double taxation? So I feel there are a lot of other expenses on which the GST has not been charged. So Okay. for that, I guess it is used. I might need to check with that. Sir. ठीक है. और your family background? So we are a family of 5 members. My parents, and then I have my elder brother and a younger sister. My elder brother is working currently as manager in IIFL Securities, and my younger sister is preparing for MBA, and she has done a bachelor in pharmacy. Okay. What motivated you to join chartered accountancy course? First of all, sir, it was very reputed profession, and someone who has this curiosity from childhood, I felt that this profession suited me the most, because as a female, I have been always little curious about why these things, what is the logic behind this. So I thought for me, this also with numbers, I can say this profession was something very lucrative to me. What do you do to improve your soft skills? So I feel I have a very good soft skills, very good communication skills. But other than that, to improve more, I realize that I have to obviously keep on upgrading myself. I communicate a lot with people, because I feel that's the primary way that we can connect and upgrade ourselves in the soft skills area. Okay. See, down the line 5 years. I'm not talking Yes, about sir. from CA point of view. You tell me that as a personality and mindset, which kind of person or girl I can say you want to become down the line 5 years? Sure, sir. So, 5 years down the lane, I would see myself personality-wise someone who is more vibrant, Okay. and someone who is very easily approachable to people. So that would really, I feel, help me to bring up me more qualities. Also, it will be able to, it will also help me to understand others. It will give me an opportunity to learn more about different aspect of life.
So I see myself as more humble, honest, and grounded person. Otherwise, mindset-wise, I would say that I would really want to have a more broader mindset. I would want that I am able to accept the other people's opinion and have the capacity to understand or have an empathy towards others. Okay. Okay. And why do you want to join top firm? So this firm is one of the most reputed consulting firm all over the world, and basically I feel whatever skills I have and the opportunity that this firm would provide me matches, and that's why I really want to be a part of such a amazing firm, which is the top. And also the key value that this firm has, it has been known to provide a very good environment to its employees, and to the rewards that this company also has been a great motivation for me to join this company. Okay. Big four firms are also known as giving you a lot of work pressure. This is Yes, what sir. we also used to hear. Okay. So how will you handle pressure after joining big four firms? So I see this as a more benefit way. I feel that this environment will make me more competitive, make me upgrade me in my skills. So I see this as an opportunity. So that's why. How do you plan your time, or any plan you have for the time management? Because see, the employees who literally wish to join big four firms, they can't survive if they don't have any time management planning for their work priorities, work life balances. So do you have any plans for that? Have you thought on this? Yes, I have definitely thought about it, and I've also heard the work balance, that professional and work balance, your life balance is really difficult. Yeah. But I have planning that I would definitely try my best that my personal life doesn't get hampered with my professional life, but also the quality of my work doesn't get depreciated. So I will definitely work more on that if I join the company. Okay, coming again to one of the technical question. Yes, Let's sir. suppose you went to an audit of an entity. Okay, you were reviewing their previous period financial statements. You got to know that their provision for doubtful debts was 3%, then 7%, then 19%, and in the current period they are planning for 11%. I said 3%, 7%, 19%, 11%. What would be your observation? So initially, I'll do a variance analysis. I would want to know from them that why last year there was such a great jump in the percentage. Why directly from 9 to 19%. So if they give a very appropriate or explanation which is reasonable, I will first of all obviously get to know what were the reasons, and if those are appropriate, then I can take it. But if in case it's not appropriate or if it's not reasonable, then I'll definitely take it up with my seniors. Okay, in general, what is the mechanism to determine this provision for doubtful debts? So it is based on the daters, on the value of the daters, and this is a percentage that is decided by the management. And as an auditor, we have to ensure the reasonableness of those percentages that they have decided. Okay, okay. Give me one reason why I should not select you today. Not select me, sir. Yeah. So I really feel that I might have some flaws. I would really believe that I might have some flaws, but I think that I do have the required skill set that this job requires. So I would suggest that keeping aside those flaws that you might have noticed, I would suggest that I feel that I am a perfect candidature for this. Okay, so do you really think that you are fit for statutory audit? So based on the skill set and the experience that I had with my previous firm, which was mainly in statutory audit, I feel I do have those skills. Okay. Okay, Nidhi, it's great talking to you. I am done with all my questions. You have any question for me? Yes, sir. First of all, thank you so much for taking out time to schedule this interview. It's a really great opportunity. Other than that, I do have few questions. What do you see that what requirements do you need from me as an assistant or executive to work for you, or what all skills do you need? Do you see that I should have it for this job? Okay, so joining
a big four firm as a chartered accountant fresher, you would be at execution level. Okay, it's the hierarchy of any job. First you start with execution level, and when you get a good experience, you will go to the review level. Okay, so since you are a fresher and you are going to start from execution level, so what would be expected from you to give attention to detail to all the assignments which is being assigned to you. See, there are two approaches for working. One is, I have assigned you ABC work, you will be like, okay sir, ABC done. And the second thing is, you will understand that what was that ABC, how that ABC is going to contribute to entire A to Z. What I'm trying to tell you that, see, in big four firms there would be always a big assignment. It is not practically possible that I'll assign you 100% of the assignment. It would always be a team job. So out of 100%, you might be doing some 10 to 15 or 7%, 8%. So what we expect you to carry a learning attitude and to focus on what you are doing and how it is getting contributed to the entire process. So that one day when you would be get assigned to the entire responsibility, you would be able to monitor the things very well. And this is how the freshers get a growth or a learning curve. Okay, so basically in short, if I'll say you, see, skills and all you will get eventually. You are going to come in a firm where this presentation skills, communication skills is something that's a very integral part. You will work with a team where your manager, your director have a great communication skills. You will learn from them interpersonal skills, how to manage the situations and all. So this thing will get built eventually, but attitude is not something that I'll put into you. Okay, that you have to follow, that you have to carry on, that yes, I have to carry learning attitude for all the assignment. I have to give 100% of my heart and I have to work properly. So this is what basically expected, and slowly and steady it would be like we also figure out that which candidate are deserving, who are focusing properly, and this is how you will get growth in big four firms. Okay. Also, so one more first question: how do you see the culture of this company, and or how have you managed to create a perfect work and personal life balance? See, personally speaking, again I'll come to the same point that I asked you, that time management is very much important. Time management is very much important, and managing yourself is also very much important, because see, time will get managed. I'll finish all my work at a time, but still my mental state might be like I'm very much tired. Okay, so you have to keep yourself motivated while working. Okay, motivation will come from within yourself. You have to feel that what you are working. If you feel like, oh my god, I have to do a lot of assignment, I'm doing a lot of work on Excel, or if you feel, see, like I'm telling you this after recalling one of the example where one employee was kept thinking that I'm doing nothing, but I'm just working on Excel, I'm doing nothing on it. But it's not like that. You focus that what you are doing on Excel. Obviously you are performing some assignment or you are completing some assignments. Okay, it's not like you are just doing, if you might be doing plus or minus in the Excel, you can say that I'm doing basics in the Excel, but doing that thing in Excel and performing some working, some reconciliation in the Excel is a completely entirely different thing. Okay, so when I work, I focus that what is the value of that work. That gives me immense satisfaction that yes, I did this work, I did this big assignment for this big client. So that gives me satisfaction as well as happiness. I complete my work at time. Still I always remain happy. Okay, that yes, I'm satisfied. Now my work has been done. I have to focus on my personal life. Okay, so this is how I used to manage my time, manage my mental state also. Okay, yeah. That's a great help, sir. Thank you. Any other question? No, sir. Okay, Nidhi, I'll pass your feedback to HR and they'll contact you back. Okay? Sure, sir. Chalo, thank you so much. Thank you so much. Wait 2 seconds. ठीक है. हाँ निधि, हाय, कैसा रहा इंटरव्यू बताइए. हाय सर. थोड़ा सा स्टटर हो गया, फ्लॉ था थोड़ा, but I feel overall it went well. जितना I was anxious and scared. Overall it was too good. Very few things I have noticed. ठीक है, जो आपको improve करना है. ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आता हूँ कि what I have noticed and see. मैंने बहुत ही small चीजें पिन पॉइंट की है, तो डोंट थिंक दैट इतना छोटा सा भी चीज देखते हैं क्या, वो देखे या ना देखे. आई हैव जस्ट फिगर्ड इट आउट, बिकॉज क्या है ना कि यू नेवर नो, ह्यूमन है, उनको किसी भी बात का बुरा लग सकता है.
ओके. Correct, तो sir. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई हैव पिन पॉइंटेड इवन ए स्मॉल थिंग. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रेसिंग फाइन है, बैकग्राउंड फाइन है, लाइट फाइन है, वॉइस फाइन है, बिल्कुल ऐसा ही रखना. Thanks. बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि उनका माइक यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, उनका वॉइस प्रॉपरली नहीं आता है. तो वॉट एवर माइक कैमरा सेटिंग यू आर फॉलोइंग करेंटली, यू कैन कैरी ऑन विथ इट. वन मोर Yes. थिंग, आपका कैमरा जो है अभी वो फोन का कैमरा है क्या? Oh yes sir. ओके. सो इन केस ऑफ इंटरव्यू यू विल ज्वाइन बाय लैपटॉप और फोन से ही ज्वाइन करना है? सर एक्चुअली अभी ना समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लिंक है यहाँ पे. Okay. तो मैं लैपटॉप से भी ट्राई कर रही हूँ, फोन से भी ट्राई करती हूँ, इसलिए इनिशियली वो थोड़ा गड़बड़ भी हो गया. बेटर I'm टू so sorry ज्वाइन for फ्रॉम that. लैपटॉप, क्योंकि क्या होता है Yes, लैपटॉप okay, में sir. आपका ऐसा व्यू दिखता है, हॉरिजॉन्टल आप कह Correct. सकते हैं. अभी आपका वर्टिकल व्यू दिख रहा है, फाइन है. I'll make sure. हाँ, इशू नहीं है कुछ. आई एम टेलिंग यू, अगर इन केस मतलब इन हाँ. केस यू आर फेसिंग इशूज इन लैपटॉप, बेटर है टू कम इन अ सेम सेटअप, बट प्रेफर्ड Okay, रहता sir. है लैपटॉप. आई एम टेलिंग यू. ठीक है, Sure sir. तो वो चीज़ ठीक है. बाकी हाँ, ये गलती नहीं करना है कि यू स्टार्टेड योर इंटरव्यू एंड यू आर ऑन म्यूट, यू आर सेटिंग योर कैमरा, यू आर सेटिंग योर माइक. इसमें बहुत दिक्कत होता है बिकॉज उनके पास ना, देखो इंटरव्यूअर है वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब उनको बहुत, और वो बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हैं. I understand उनको sir. I ऐसा, understand that. हाँ, उनको ऐसा फील होता है कि अभी तक तो मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया रहता एंड शी इज नॉट प्रिपेयर्ड. बिल्कुल Sorry ऐसा sir. करना. I'll take care of that. Yes. हाँ हाँ, कोई नहीं, वो चीज होता है, बट यू ये ध्यान. और हाँ, एक और चीज, हम लोग क्या करते हैं ना, कैमरा ऑफ करके ज्वाइन करते हैं, फिर कैमरा ऑन करते हैं. ओके, यू हैव टू ट्राई कैमरा ऑन करके. देखो आप अगर गूगल मीट देखोगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी होता है अगर आपका इंटरव्यू, तो पहले से कैमरा ऑन करने का ऑप्शन आता है. Okay. आप ना क्या करो, देखो मैं हमेशा ऐसा करता था कि बिफोर इंटरव्यू हाफ एन आवर 1 आवर बिफोर आप क्या करो, सेट कर लो पहले कैमरा. एक खुद से लिंक जनरेट कर लो गूगल मीट का, सेट योर कैमरा, सेट योर लैपटॉप, आप जैसे भी करो, देख लो कि मेरा ये बन रहा है, मैं ऐसे बैठ रही हूँ, मेरा ऐसे करके यहाँ पे ये सेटअप बन रहा है, वैसे ही एग्जैक्टली बैठो. थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट हो आफ्टर ज्वाइनिंग कर लो, बट थोड़ा मोड़ा होना चाहिए. Okay ठीक sir. है. हैंड साइंस मत कीजिए. यू आर लुकिंग वेरी फाइन वाइल डूइंग हैंड साइंस, बट इंटरव्यू में हैंड साइंस नहीं करना है. इन द एंटायर इंटरव्यू यू डिड दैट. ठीक I है. know. I'm so सी हैंड साइंस क्या होता है? हैंड साइंस आई एम टेलिंग यू, इट वर्क ऑन वाइल पब्लिक स्पीकिंग, राइट? टीचर हैंड साइंस करता है तो शोभा देता है. अभी इंटरव्यू मोड में अभी नहीं करने का, बाद में किया जाएगा. ठीक है, तो हैंड साइंस नहीं okay, करने का. ठीक है. उसके बाद देखो आपका ना टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है. एक बात को आप समझना, अगर किन्हीं को बोलने में प्रॉब्लम होता है ना, अगर उनका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो दे कांट गेट द आइडियल कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन 2 days, क्योंकि ये प्रैक्टिस की Okay. बात है. बट जिनका टेक्निकल में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो विद इन 2 days ब्रश अप कर सकते हैं. तो आपके बोलने में इशू नहीं है, बोलते आप बहुत सही. मैंने मतलब मेरा फेस एक्सप्रेशन ऐसा वैसा जनरल होता भी नहीं है, बट मैं पूरे इंटरव्यू में अपना मुंह बना के ही था. ओके, जस्ट कि आपको थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़े, बट उस चीज़ से आपको इफेक्ट नहीं पड़ा. आप अपने फ्लो में ही जा रहे थे. यूर लाइक कॉन्फिडेंट गोइंग ऑन. 1-2 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा, बट आप थोड़ा सा गड़बड़ाए बीच में. ठीक है. So which question do you think? कौन सा वाला question? देखो, एक तो मैंने ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ये आपको पता भी नहीं है तो आई विल जस्ट टेल यू. आई आस्क्ड यू दैट मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स रिलेशन विद इंटरनल कंट्रोल. आप एक और बात, मैंने 3-4 क्वेश्चन में इस चीज़ को फील किया. क्वेश्चन ध्यान से आप सुनो. ठीक है. Okay. आपको याद होगा कि आई रिपीटेड 2-3 क्वेश्चन दैट मैंने ये पूछा है आपसे. आई एम आस्किंग अबाउट दिस, आई एम आस्किंग अबाउट दिस. क्यों? क्या फील होगा इंटरव्यूअर को दैट यू आर नॉट हियर. आप कितने भी फोकस्ड, देखो क्या होता है ना, हम लोगों को ऐसा फीलिंग आता है दैट उनके क्वेश्चन खत्म करने के पहले मैं जितना जल्दी बता दूं, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. उस चक्कर में इफ़ यू डू मिस्टेक, या अगर आप उनको ऐसा फीलिंग दिला दिए कि आप सुन नहीं रहे थे या आपको ध्यान नहीं रहा ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो मैंने आपसे पूछा था मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स रिलेशन विद इंटरनल कंट्रोल. ओके, आंसर ये होना चाहिए. सैम्पलिंग आपने सही बोला कि एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मेरा जो सैम्पलिंग के लिए आता है 530, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू अराइव कंक्लूजन अबाउट द 100% ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. इट्स रिलेशनशिप विद इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? व्हेन योर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक यू विल एक्सटेंड योर सैंपल साइज. ये बोलना था आपको. ठीक है, आपने इंटरनल कंट्रोल्स एक्सप्लेन किया ऐसे वैसे दिस दैट, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के ऐसे. फिर मैंने आपसे एक बात पूछा, ये मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने बोला आप गए और रिलायंस का ऑडिट करने, इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक है. देखो, कंट्रोल इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एज कम्पेयर टू इंटरनल कंट्रोल्स. क्या होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट?
So overall entity के ओवरऑल जो एंटिटी environment मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स कंट्रोल्स. अगर उनका एटीट्यूड ही ढीला है तो इंटरनल कंट्रोल्स भी ढीला होगा, राइट? अब आप एक बात बताओ मुझे, रिलायंस इतना बड़ा है, उसका सैंपल आप कितना बढ़ा सकते हो? आप मुझे बताओ. अगर आपको लगे कि कंट्रोल्स पूरा वीक है तो सैंपल साइज बढ़ाना है, बट कितना बढ़ा सकते हो? क्या आप 80% बढ़ा के करोगे? क्या ये पॉसिबल है कि हम रिलायंस का 80% ट्रांजेक्शन also difficult. ऑडिट कर ले? डिफिकल्ट. इन दैट केस ऑडिटर विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. ये बोल रहा है कि if the control environment is weak, we can extend sample size. However, if we feel that practically it is not possible due to limitations of audit, वो time and cost वाला है ना, limitation of audit में point. Yes, अगर sir. वैसा लगने लगे, यार आप एक बात को समझो, 100% means 100% and sampling means less than 100%. अब less than 100% doesn't mean 90%. Correct, sir. राइट? तो कंट्रोल एनवायरमेंट इतना वीक है कि मैं 90% एक्सटेंड कर दूं सैंपल, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है. ठीक है? तो इसीलिए इन दैट केस वी विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, साइटिंग द रीजन दैट द कंट्रोल एनवायरमेंट वेरी मच वीक, दैट वी वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ऐसा थोड़ा Okay, सा sir. 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑडिट का. आप आंसर Okay, बहुत sir. अच्छे से कर रहे हो. मैं ऑलमोस्ट अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर करो अपना आंसर को, बट दैट आई विल नॉट टेल टू यू. आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड रहता है, बिल्कुल स्टार्ट एंड, बट बीच का कंटेंट को थोड़ा सा सुधारना Additional है. quality इसमें ऐड हाँ, करनी पड़ेगी. टेक्निकल को अपना थोड़ा सा और ब्रश अप करो कि बात ना लॉजिकल करो. सी, दिस इज नॉट 12 मार्क्स क्वेश्चन और 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन कि यू हैव टू एक्सटेंड. यू हैव टू Right. टेल द थिंग दैट इज लॉजिकल. 1 लाइन 2 लाइन 3rd लाइन खत्म आंसर. Right. ठीक है? फिर और वो उनको पूछने दो ना, वो और पूछेंगे तो बताएंगे आगे. अदरवाइज हम 3 to 4th लाइन में अपना आंसर खत्म कर देंगे. ज़्यादा खींचना नहीं है आंसर को. वैसे आपने खींचा नहीं है. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि खींचने में अगर लास्ट में आके हड़बड़ा जाएंगे ना तो वो अपने पे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. Okay, sir. I'll take care of it. चलो, मैंने ये बोला था लिसन टू क्वेश्चन प्रॉपरली. और हाँ देखो, मैंने एक चीज़ ये भी आपसे पूछा उसमें दैट एक वो रिस्क वाला क्वेश्चन. हाँ, कि अगर लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंस टेलीफोन में बुक हो रहा है तो व्हाट आर द रिस्क, मैंने पूछा था आपसे. आपने बोला मैं मैनेजमेंट से पूछूंगी, अगर एप्रोप्रिएट रीजन नहीं मिला तो आपसे बात करूंगी. मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैं पार्टनर हूं, आप मुझसे क्या डिस्कस करोगे? आपने क्या बोला? मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगी, नहीं हुआ तो मैं आपको बोलूंगी एक्शन लेने. मैं यहां तक पूछ चुका हूं कि अब मुझसे क्या, छोड़ो मैनेजमेंट की बात. क्वेश्चन अच्छा, बहुत, okay. आप मुझसे क्या बोलोगे? आपको स्टार्ट ही करना चाहिए कि सर ऑडिट करने के बाद आपसे हम ये डिस्कस करेंगे. और उसमें क्या Okay. डिस्कस करना था? ये डिस्कस करना था कि हेडिंग क्लासिफिकेशन इज नॉट राइट. मैंने आपसे रिस्क पूछा, आपने कुछ रिस्क बताया कि लीगल पता नहीं चलेगा कि क्या नोटिस एंड ऑल है. इसमें एक और रिस्क है. सी, वी डिडक्ट टीडीएस ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, राइट? Correct. अगर उसको हम टेलीफोन में डाल रहे हैं तो कभी टेलीफोन एक्सपेंस में हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे? नहीं. तो एक स्टैच्यूरी मेरा लायबिलिटी छूट रहा है. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आर्टिकलशिप में हुआ था. एंड व्हेन आई आस्क्ड टू द अकाउंटेंट, ही सेड लाइक एक्सपेंस ही तो है, इधर ही तो डाले है. ठीक है? तो ये चीज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं उस चीज से आपसे पूछ रहा था. ठीक है? तो ये एक इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है. लेजर स्क्रूटनी जब हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. एक लेजर के अंदर जाके देखते हैं कि यार उसमें सही चीज तो है ना वो किया हुआ. Okay. तो क्वेश्चन ध्यान से सुना. आप क्वेश्चन नहीं सुनते ध्यान से. देखो, मैंने लिखा है इन कॉन्फिडेंस डोंट स्लिप. कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, बिल्कुल कोई आपको जज ही नहीं कर सकता है कि इसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है. ठीक है? बट उसमें आपको स्लिप नहीं करना है. स्लिप करने का मतलब यही है, क्वेश्चन नहीं ध्यान से सुने, मेरा क्वेश्चन Yes, खत्म sir. नहीं हुआ आप स्टार्ट कर दिए. और इंटरव्यू के टाइम ज्यादा मूव नहीं करना है. आप हैंड तो मूव Yes, कर ही sir. रहे हो, आप सर भी अपना ऐसे ऐसे करो. उससे क्या होता है? सी, ये बात मैंने एक और distraction, कैंडिडेट को बोला था. देखो, डिस्ट्रैक्शन तो है. मुझे क्या फीलिंग आएगा पता है? कि यू आर टेकिंग दिस इंटरव्यू लाइटली, ऐसा फीलिंग आएगा. मतलब सी, वो अपना बिहेवियर होता है. कुछ गर्ल्स का होता है कि वो बहुत ही ज्यादा. अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था, मुझे लिटरली उनको बोलना पड़ा कि थोड़ा सा ना वॉइस को ऐसा बोलिए कि थोड़ा सा, मतलब इट शुड गो लाइक अ रॉकेट. ठीक है? आप इतना प्यार से मत बोलिए कि एक बहुत ही ज्यादा कैजुअल कॉन्वर्सेशन लगे. अब आई अंडरस्टैंड कि किन्हीं का वॉइस उतना सॉफ्ट होता है, बट आई टेल यू दिस इंटरव्यू इज एक्टिंग. मैं आपको बताता हूँ, मैं ना प्रोफेशनलिज्म को सिंपली ऐसे ही डिफाइन करता हूँ. प्रोफेशनलिज्म मीन्स एक्टिंग. अभी मैं आपके सामने इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट व्हेन यू आर इन द प्रोफेशनल मोड यू हैव टू एक्ट. सिंपल सी बात है. जैसे डांस परफॉर्मेंस होता है, ये भी आपका परफॉर्मेंस है. ठीक है? मे बी मैं बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, मैं बात करती हूँ, बहुत ही हंस के बात करती हूँ ऐसे, बट अभी थोड़ा सा वो लाना पड़ेगा. बिकॉज देखो, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट ओनली वियरिंग शूट,
या आप प्रॉपर ड्रेस्ड हो, आप बोल प्रॉपर रहे हो, आप बोल क्वालिटी बात रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, लॉट ऑफ थिंग्स मैटर्स एंड दे सच में बिग फोर्स वाले और बड़े बड़े कंपनी, मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े कंपनी इस बात पे भी करते हैं फोकस कि ये लड़की मेरे कैंपस में कैसी लगेगी। मैं लुक वाइज नहीं बोल रहा हूँ, बिहेवियर वाइज भी बोल रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से बिहेव की, क्लाइंट से अगर कुछ ऐसा बात कर ली तो व्हाट विल हैपन। इस सब बेसिस पे ये लोग करते हैं जज। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब मेरा बस यही कहना था। बोलो, आप बहुत सही बोल रहे हो। इट्स जस्ट लाइक मैं ज्यादा वो ना मूव ना कर, हाँ, ज्यादा कैमरा के पास ना हूँ। वैसे आप नहीं आ रहे थे, बहुत लोगों का होता है कि सुनने के उसमें कुछ अगर सुनाई नहीं दिया तो यू कैन से दैट सर कैन प्लीज कम अगेन, और हल्का सा ऐसे, बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है। प्लस वन मोर थिंग, ये भी आपने बहुत कम किया है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज जनरली लोग करते हैं, नेवर लुक अप साइड। Yes, I was trying to ऐसा focus, पर वो जा रहा था। नहीं करना है, आपने एक दो बार ट्राई किया। देखो आप ना, आप मुझे यही करना नोटिस, इफ आई एम डूइंग लाइक दिस। ऑडिट सैम्पलिंग बहुत ही ऑड लगता है। इफ यू वांट टू थिंक, आई अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो वो सोचने का होता है और उस समय आई कांटेक्ट नहीं किया जाता है। सो आप उस समय क्या करो, जस्ट लुक डाउन एंड दैट टू नॉट फ्रॉम हेड, नॉट दिस, जस्ट अपना नजर नीचे, दैट्स इट। ठीक है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं देखना है, बहुत खराब लगता है देखने में। ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा कॉपी पेस्ट को। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मैंने खुद से बोला कि ऑडिट रिपोर्ट में मोस्टली कॉपी पेस्ट होते हैं। आपने हंस के एक्सेप्ट कर लिया, नहीं एक्सेप्ट करना है। इस बात को पता है क्या बोलना है कि सर आई अंडरस्टैंड दैट फ्यू ऑफ द फैक्ट्स आर बीइंग कॉपीड व्हिच हैज नॉट बीन। देखो फैक्ट्स हमेशा, अच्छा बताओ, फैक्ट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक तो सेम रहेगा। अंदर आप समझ रहे हैं? फैक्ट्स जब तक, अच्छा ट्रांजैक्शन मान लो चेंज हो गया, मान लो कि ट्रांजैक्शन चेंज हो गया है, तो भी क्या ऑडिट रिपोर्ट में आप सेम बात लिखोगे? क्या नहीं लिखोगे ना? नहीं। अगर ट्रांजैक्शन ईयर टू ईयर चेंज हो गया है, बट फैक्ट्स अगर ईयर टू ईयर सेम है, तो ओनली फैक्ट्स आर बीइंग गेटिंग कॉपी पेस्टेड। आपको मेरे बात को ऐसे काउंटर करना चाहिए था इस बात पे कि यस सर आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज कॉपी पेस्ट, बट द ओनली फैक्ट्स व्हिच हैज नॉट बीन चेंज्ड इज बीइंग same in the current period audit report. However, the current period audit report is being always drafted based on the audit procedures or analysis which has been performed in the current period financial statements. Okay? So I agree with you, but there are a lot of things that has been ऐसे। Okay? आपने मेरा स्टैच्यूटरी ऑडिट वाला वीडियो देखा YouTube पे? देखे हैं, एक दो वीडियोस देखे हैं। स्टैच्यूटरी ऑडिट प्रिपरेशन वाला वीडियो देखा कि नहीं? मॉक इंटरव्यू नहीं? नहीं, वो आप लिखो होमवर्क में, आप उसको देख लेना। उसमें मैंने एक एनुअल रिपोर्ट कराया है, डाबर का एनुअल रिपोर्ट मैंने कवर कराया है। आप वो कवर कर लेना वीडियो से। सिमिलरली 2-3-4 एनुअल रिपोर्ट और पढ़ लेना। ठीक है? इसके वो वीडियो देखने के बाद यू आस्क मी अबाउट द एडिशनल मटेरियल। मेरे पास कुछ एडिशनल मटेरियल है, उसमें बिहेवियरल क्वेश्चंस है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ना वाई सी दिस दैट, आपने आंसर ऑलमोस्ट ठीक किया, बट बिहेवियरल क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब आपको डिजाइन करके बोलना है, बिकॉज फिर दे विल डू क्रॉस क्वेश्चन। हम लोग को क्रॉस क्वेश्चन अवॉइड करना है बेसिकली। स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको अच्छे से बोल दोगे ना तो इसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैंने बना के वहां सेव किया, बट दैट आई विल शेयर विथ यू ओनली आफ्टर यू वॉच माई स्टैच्यूटरी ऑडिट वाला वीडियो। क्योंकि स्टैच्यूटरी ऑडिट वाला वीडियो मतलब वो ट्रेल है, वो वहां तक आप कर लोगे ना, उसके बाद वो जॉइंट में है आगे मेरा एडिशनल मटेरियल। वो मैंने यूट्यूब पे नहीं शेयर किया बिकॉज एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, एंड ऑल द आंसर्स जो वो आंसर वो मेरा डिजाइन किया हुआ है। जैसे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, इफ यू विल डू गूगल यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। करेक्ट सर। बट वो कॉमन आंसर हो जाते हैं। इंटरव्यूअर का रोज का यही काम रहता है, उनको बड़ा इरिटेटिंग लगता है अगर कोई ऐसा आंसर दे। अच्छा बताओ, बिहेवियरल जो क्वेश्चन है दैट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, और आप वो कहीं से रट के आए होंगे। बताओ, मैं आपसे पूछा, हाथ से आना मतलब खुद से आना चाहिए, वो थोड़ा सा लगना चाहिए कि मैं ही बोल रही हूँ, कि आप बोल रहे हो, राइट। मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, या आप कहीं बुक से तो तैयारी किए नहीं होंगे। ऐसे 505, 530 आप बुक से तैयारी किए होंगे। ठीक है, एक और आपका अच्छी बात है जो मैं सब स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, दैट बिफोर आंसरिंग यू गिव सम हेडिंग टू द आंसर। जैसे सर कमिंग टू दिस क्वेश्चन और टॉकिंग अबाउट दिस, और ये तो इस तरीके से करके आंसर करने में थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी आता है। एक बात मैं और आपको बताऊं, टेक्निकल क्वेश्चन का जब आंसर करना, तो मैंने जो बोला है कि थोड़ा सा मतलब स्माइलिंग फेस रखना है, बट थोड़ा सा कंट्रोल रखना है टेक्निकल के केस में। बिहेवियरल आप थोड़ा सा कैजुअल करके कर सकते हो, बिकॉज यू आर टेलिंग अबाउट समथिंग जो आपके मन में है।
ठीक Okay, है। sir. बट देखो बिहेवियरल क्वेश्चन का भी हमको तैयारी करना है, पढ़ना Correct, उसे sir. भी है, स्ट्रक्चर्ड आंसर आना चाहिए। मैं शेयर करूंगा आपसे लिंक आफ्टर यू विल वॉच दैट वीडियो, बट बोलना ऐसे है जैसे मैं दिल से बोल रही हूँ। मुझे अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा समथिंग हैपेंड विथ योर फ्रेंड, अब आप कैसे बताओगी? आई विल नॉट फील दैट आप कहीं से पढ़ के मुझे एक्सप्लेन कर रही हो, आप जस्ट Correct, बताओगी sir. बिकॉज आपको आता है। तो इंटरव्यू का भी मोड ऐसा ही रहना चाहिए। एंड आई फाउंड मोर देन 80% दैट एलिमेंट इन यू, वो चीज है ऑलरेडी। आई एम जस्ट रिपीटिंग कि आपको ध्यान रहे। सी टेक्निकल क्वेश्चन यू कांट आंसर लाइक सर आई वुड लव टू आंसर व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, ये आप नहीं कर सकते हो। बट वाई सीए का आंसर आप कर सकते हो कि आई वुड रियली लव टू आंसर दैट वाई आई हैव चूजन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज माई करियर व्हेन आई क्लियर्ड माई क्लास 12th, ऐसे ऐसे दिस दैट, ये वो दिस दैट ऐसे करके, ठीक है। और कभी भी पूछे आपने ऐसा क्यों किया, आपने सीए क्यों लिया, आप बिग फोर क्यों आना चाहते हैं, आप ये क्यों, तो इसमें हमेशा इस तरीके से शो करना कि समथिंग आपका क्वालिटी मैच करता था इससे, पर्सनल क्वालिटी। जैसे मैं जो आपको लिंक शेयर करूंगा ना, उसमें ऑडिट का मैंने वाई ऑडिट का क्या रीज़न दिया है कि मैं एज अ पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। मैं हमेशा इस बात पे करती हूँ फोकस दैट क्या चीज़ है जिसमें ज़्यादा लॉजिक है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑडिट आफ्टर माई ये आप कह सकते हो आफ्टर क्लियरिंग माई इंटरमीडिएट, आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर दैट इन विच डोमेन आई हैव टू pursue my career as an intern or after as a chartered accountancy. So I have और दूसरे के बारे में नहीं बोला है मैंने, टैक्स देखा मुझे खराब लगा, नहीं। आपको ऐसे बोलना है कि I was researching about statutory audit and I thought to get some practical insights. For that purpose I started to read annual report. And Okay. there I found independent auditor's report. I found that whatever is mentioned there in independent auditor's report, I was able to relate that more than 80% I am already read in my CA intermediate syllabus. So my teacher was telling that audit is a theory paper. I realized that it is a practical paper. What I am reading is getting applied practically. This is what attracted me most towards audit. ऐसे करना है कि मैं प्रैक्टिकल थी, मुझे अच्छा लगा। YCA का भी मैंने कुछ ऐसा ही आंसर किया है, आप सुन लेना, उसको स्ट्रक्चर कर लेना कि मैं स्टार्ट से ऐसा मुझे वैल्यूड फील करना अच्छा लगता है, प्रेस्टिजियस मुझे एक उसमें जाना था जो कि कम लोग करते चैलेंजिंग हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन डू जॉब आफ्टर डूइंग BCom ऑल्सो, बट आई वॉन्ट टू परस्यू वन प्रोफेशनल कोर्स विच इज चैलेंजिंग इन नेचर। एंड सीए की बात तो ही ऐसा है कि इन एवरी स्टेजेस देर आर चैलेंजेस एंड वंस यू अचीव दैट फीट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ प्रेस्टिजियस, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। सो आई वॉन्ट टू कीप दैट प्रोफेशनल कोर्स विथ मी फॉर लाइफ टाइम विच विल गिव मी लाइफ टाइम दिस दैट। आप वो सुन लेना, मतलब मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे आंसर करते, भैया ने बोला, मैंने उनको देखा था, ये बात आप बोल सकते हो। सी यू कैन से दैट आई हैव अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स वर्किंग इन EY, ओके, आई सी दैम, दे हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। बट देखो किसी को देख के आपको जस्ट फीलिंग आता है कि वो अच्छा है, बट उसको एक्सेप्ट आप तभी करोगे जब आप प्रैक्टिकली फील करोगे। तो ये लाइन अगर आप बोले भी ना कि मेरे भैया है या मेरे सीनियर है या मैंने किसी को देखा EY में काम करते, मान लो पूछा वाई EY, आप बोलोगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो EY में काम करते हैं, उनका पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होता है, नॉलेज ज़बरदस्त होता है, स्किल्स ज़बरदस्त होता है, बट दिस विल नॉट ओनली पुश यू टू गो फॉर EY। ये लाइन बोलना है, उसके बाद आपको बोलना है देन आफ्टर आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट EY, ओके, एंड आई वाज गोइंग थ्रू द वेबसाइट, आई फाउंड देयर मिशन एंड विजन to build a better working environment. This attracted me a lot. I mean, employer which is focusing on building a better working environment, that means that they are focusing towards the employees well-being, okay, and the organization which supports their employee, और मतलब ऐसे करके आप बोल सकते हो जो employee का ध्यान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, कभी भी ये मत बोलना उनसे सुन के मैंने अच्छा लगा, इस सुन के अच्छा लगा फिर मैंने रिसर्च किया मुझे अच्छा लगा उसके बाद, ये होता है लॉजिकल आंसर। अदरवाइज वो डेफिनेटली कर देंगे, कल को आपको कोई MBA दिख जाएगा बढ़िया पर्सनालिटी वाला तो आपके MBA करने निकल जाओगे। तो वी हैव टू अवॉइड क्रॉस क्वेश्चन। वो जो बिहेवियरल क्वेश्चन का मेरा लिस्ट है वो मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, वो आपको कहीं गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो मेरा अपना पर्सनल डिज़ाइन किया गया है। तो आप स्टैच्यूटरी ऑडिट का वीडियो देख लेना, इंटरनल का भी देख लेना, मेरा इंटरनल भी आप सिंपली सर्च करना CS सुशील कुमार स्टैच्यूटरी ऑडिट वीडियो मिल जाएगा, इंटरनल ऑडिट वीडियो वो भी देख लेना, डायरेक्ट टैक्स का भी देख लेना। टैक्स तो मेरा वही क्वेश्चन था, एक दो तीन में क्वेश्चन जरा पूछूं। हाँ हाँ बोलिए ना।
सर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि गिव मी अ रीजन व्हाई आई शुड नॉट हायर यू, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए था कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज्ड टू से मुझे टू आपको मुझे खुद आपको ये नेक्स्ट पॉइंट वही है, मैंने आपसे बोला था आपको नहीं बोलना है फ्लॉ होगा मेरे में, आपने फ्लॉ देखा होगा, क्यों बोलना है ये बात, जस्ट सर आई डोंट फाइंड एनी रीजन दैट यू शुड नॉट हायर मी, ऐसे बोल, और ये बोल के चुप नहीं हो जाना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है दैट सर आई हैव अप्लाइड फॉर स्टैच्यूटरी ऑडिट, you have a position for statutory audit and I believe that theoretically as well as practically I have very sound skill set and till now you have asked me a lot of questions and I don't think that I have fumbled in any one of it, ऐसे बोलना वो एक्चुअली सर कैसा हो गया ना, मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ गया कि कहीं मैं एरोगेंट साउंड ना करूं कि सुनो मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ, देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये बात जो मैंने जो लास्ट लाइन बोला कि आपको बोलना है कि आपने अभी तक पूछा और मैंने आंसर किया है, ये तभी बोलना है जब आप फ्लुएंटली आंसर किए हो, अगर 2-3 का आंसर नहीं किए हो ना वो तो भी आप बोल सकते हो कि मैं आंसर भी कर रही हूँ, इफ यू वांट टू चेक मी मोर यू कैन आस्क बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट इन माई आर्टिकलशिप, आई हैव डिड इट एंड ओके आई अंडरस्टैंड दैट इफ देयर वुड बी एनी अदर शॉर्ट कमिंग्स स्लोली एंड स्टडी आई एम गोइंग टू लर्न इट, ऐसे करके बोलना है, बट ये नहीं बोलना है कि आपने स्टार्ट में ही फ्लॉ, उनको सीधा बोलना है कि सर आई डोंट फाइंड एनी रीजन दैट यू शुड नॉट हायर मी, बहुत सॉफ्टली बोलना है, और आप तो ऐसे ही सॉफ्टली बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई एरोगेंस वाला बात नहीं होगा, जस्ट उनको ये बात बोलोगे कि मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है दैट आप मुझे रिजेक्ट करो बिकॉज मेरे पे स्किल सेट है ये वो दिस दैट एंड आप जो पूछ रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू फर्दर चेक आई एम वेरी ओपन फॉर टू दैट, ठीक है। थोड़ा सा देखो अपना भी, मैं हमेशा इंटरव्यू में वही बन के नहीं रहूँ, हाँ नहीं मेरे को एरोगेंस दिखाने कॉन्फिडेंस दिखाने में बहुत डिफरेंस है, ये क्वेश्चन हमेशा वो आपको लास्ट में पूछेंगे, आफ्टर टेक्निकल पूछेंगे, ये बिहेवियरल में आता है, स्टार्ट ही नहीं करेंगे इससे, या आफ्टर 2-3 क्वेश्चन वो नहीं करेंगे, तब तक आपको आइडिया लग जाएगा कि एक तो उनका बिहेवियर कैसा है, एक तो वो कैसे आपके आंसर्स को ले रहे हैं इस बात पे भी, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड माइनस करके बता सकते हैं, ओके सर, ठीक है। चलो और कुछ पूछना है आपको? सर और दूसरा पूछना था कि टैक्स के लिए व्हाट यू थिंक मुझे कितना ब्रश अप करना चाहिए? वही आप मेरा वीडियो देखो, मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुनो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप वो मेरा वीडियो देखो, वो डायरेक्ट टैक्स वाला भी देखना, 3 वीडियो आपको देखना है, स्टैट्यूटरी, इंटरनल, डायरेक्ट टैक्स, और तीनों का इंटरव्यूज में वो पूछते हैं बट इंटरव्यूज में क्या वो डायरेक्ट टैक्स पे मतलब मुझे पूछेंगे? थोड़ा सा आपसे ना बेसिक, जैसे देखो, अच्छा बताओ आप एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर वेदर यू विल चेक डेफर्ड टैक्स और नॉट, चेक करोगे ना, तो आपको डेफर्ड टैक्स का नॉलेज होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट ऑल्सो, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स चेक करोगे कि नहीं, ब्लॉक मेथड वगैरह ये सब पता होना चाहिए, देखो ये सब बेसिक्स है, आप अभी सीए क्वालिफाई किए हो, आपको पता होगा ये चीज, एंड इट्स नॉट अ बिग डील, आप 3 to 4 आवर्स में आप इतना कवर कर लोगे। देखो टीडीएस रेट्स पता होना चाहिए, अभी कुछ फेमस टीडीएस रेट्स आए वो पता होना चाहिए, अमेंडमेंट्स पता होना चाहिए, सीबीडीटी से रिलेटेड न्यूज पढ़ लो थोड़ा, आईटीआर के फॉर्म्स पता होना चाहिए बिकॉज आईटीआर का सीजन चल रहा है, ड्यू डेट्स पता होना चाहिए, बिलेटेड रिटर्न, कब रिटर्न लेट फाइल करने से क्या होता है, इंटरेस्ट पता होना चाहिए, 234 ABC, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट कब है, नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना है, फॉर्म 26 क्या होता है, बेसिकली मुझे डायरेक्ट टैक्स पूरा वापस पढ़ने करना पड़ेगा और सी, अरे आप ऐसी बात करो तो कैसे काम चलेगा, आप सीए क्वालिफाई कर गए हो। अच्छा बताओ 26 AS, AIS, TDS रेट्स, TDS का हल्का सा एप्लीकेबिलिटी पढ़ना, थोड़ा सा पीजीबीपी का हल्का सा, देखो पीजीबीपी, अच्छा एक चीज को फील करो, पूरा पीजीबीपी क्या है, बिजनेस एक्सपेंस अलाउड और पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड, आप ध्यान से पीजीबीपी देखो तो यही है। अगर आप स्टूडेंट रहते ना तो मैं बोलता, बट आज आप सीए हो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही बात करूंगा कि पूरा पीजीबीपी यही है और कुछ नहीं है कि मेरा बिजनेस से एक्सपेंस हो तो वो करेंगे, नहीं है तो हम ये करेंगे, दैट्स इट। वैसे ही पूरा जीएसटी, आई एम नॉट श्योर आपको मेरा बैकग्राउंड पता है कि नहीं, आई मीन इन डायरेक्ट टैक्सेशन स्टार्ट से, PwC आई वर्क 2 years and half months, 2 years and 6 months, देन आई जॉइन टाटा ग्रुप, अभी मैं एडटेक स्टार्टअप में हूँ गुड़गांव, तो इनडायरेक्ट टैक्स अपना एरिया है, मुझे पूरा का पूरा जीएसटी अब सिर्फ इतना दिखता है कि तुम बिजनेस करोगे तो तुम अच्छे हो, बिजनेस नहीं करोगे तो तुम्हारा समय खराब हो गया, जीएसटी ऐसा करता है, लॉ का इंटेंशन ये है, तो दिस थिंग ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस से आता है, बट आपको ओवरऑल यही समझना है, मतलब एज कम्पेयर टू इंटर के स्टूडेंट्स और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स अब आप फास्टली कवर करोगे,
ठीक है। Correct, तो sir. आप वो तीनों वीडियो देख लेना, हो जाएगा। बट मैं आपको इस चीज़ का आंसर बताना चाहता हूँ सो दैट ना आपका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर रहे। देखो इतना तो सीए से एक्सपेक्ट किया जाए कि उसका बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। Correct, sir. अच्छा, मैंने पूछा क्या ज़्यादा आपसे टैक्स? नहीं, आई जस्ट आस्क्ड वन नहीं। क्वेश्चन जस्ट टू चेक योर बेसिक्स, ठीक है। तो Okay. इसीलिए आया है, और बाकी इनकम टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता ही है, ठीक है। तो सर जनरली बिग फोर में वो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? लाइक जैसे अभी हमने इंटरव्यू दिया वैसा क्वेश्चंस या मोर ऐसा ऑफ ही बेस क्वेश्चन केस रहेगा। स्टडीज देखो बना थोड़ा के? सा मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। वो जो आपने काम किया है ना, एक एक लाइन पकड़ के पूरा पूछेंगे। जैसे मान लो आपने बोला है कि टैक्स ऑडिट किया है मैंने, तो 3CD का क्लॉजेस पूछ देंगे। कुछ न्यू क्लॉज आया होगा तो वो पूछ देंगे। अभी 3CD में आया है न्यू क्लॉज, पढ़ लेना, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है। अमेंडमेंट सेक्शन, ये शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स, सेक्शन 135 के अमेंडमेंट्स, ओके। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। देखो आपका आर्टिकलशिप पे काम किया हुआ पे आपको 360 डिग्री होल्ड रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन बनता है, मेरा ध्यान से निकल गया, मैं ही आपको पूछने वाला था कि आपने क्या सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट किया है अपने आर्टिकलशिप के थ्रू, या कौन सा ऐसा असाइनमेंट कुछ ऐसा किया हो जहां पे आपका पॉइंट को एक्सेप्ट किया गया हो, या आपने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया हो। तो अगर नहीं भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड है आर्टिकलशिप का, तो एक पॉइंट ऐसा निकाल देना। जैसे मैंने यही बात बोला था कि प्रोफेशनल का एक्सपेंस टेलीफोन में बुक हो रहा था, तो मैंने अपने सीनियर को हाईलाइट किया दैट इस पे टीडीएस का भी वो है, तो ये लेजर स्क्रूटनी में मैंने इस चीज़ को पकड़ा था। तो वैसा ही कुछ आप बना के बोल सकते हो, नहीं हुआ तो भी बोल सकते हो। जनरल फ्रॉड्स हम लोगों को पता होता है, राइट? आप बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया था, लास्ट टाइम पे मैंने हाईलाइट किया था। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे जूनियर्स ने देखा था, इवन मेरे कुलीग ने भी देखा था, बट वो हाईलाइट नहीं किए थे, मैंने लास्ट टाइम पे हाईलाइट किया, और इस बेसिस पे मेरे पार्टनर ने रिपोर्ट रिवाइज करवा दिया था। ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इन लोगों का बनता है। आपका काम किया हुआ पूछेंगे, करंट अमेंडमेंट्स पूछेंगे, करंट अफेयर्स भी थोड़ा पूछ सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चेंजेस वगैरह का ध्यान रखना प्रॉपरली, ठीक है। और ईवाई या बिग फोर जो भी है उसका अच्छे से पढ़ लेना, कहाँ हेडक्वार्टर है, कितने एम्प्लॉय है, कितने नंबर पे आता है, कितने सर्विसेज है, उसका मिशन विजन क्या है। आप जो मेरे से आंसर लोगे बिहेवियरल, मैंने ऐसे ही बोला है, लेट सपोज वाई ईवाई है, तो मैं उसका मैं जब आपका एग्जाम्पल दे रहा था तब भी मैं उसके मिशन से मुझे याद हो गया, मैंने ऐसे ही आंसर है, बेटर द बिल्डिंग द बेटर वर्किंग वर्ल्ड, वर्किंग इन्वायरमेंट या ऐसा करके कुछ है, बेटर वर्किंग वर्ल्ड या बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, बेटर वर्किंग वर्ल्ड है शायद ईवाई का। तो इस चीज़ को लेके बोलना है कि मुझे आपका मिशन बहुत पसंद आया, तो मुझे आप पसंद आ गए एंड आई प्लान टू ज्वाइन ईवाई। केपीएमजी का भी कुछ इंटेग्रिटी वगैरह वर्ड है, जैसे केपीएमजी का मैंने कैसे ड्राफ्ट करवाया था कि इंटेग्रिटी है उसके वैल्यूज में, तो ये बोलना है कि सर मैंने वैल्यूज में देखा इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिटर। तो जो फर्म ऑडिटर के इंटेग्रिटी को इतना वैल्यू देता है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वुड लव टू ज्वाइन दैट फर्म। देख रहे उसके अच्छे बात को हम अपने अच्छे वाले बात से रिलेट कर रहे हैं। वो बोल अच्छा बताओ वो बोलेगा क्या, और अपने मिशन विजन के बारे में कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेगा क्या? नहीं, मेरे इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम है, ये तो नहीं बोलेगा, राइट? ठीक है, तो आंसर ऐसा ड्राफ्ट करना है कि उधर से क्रॉस क्वेश्चन ना आए, बिहेवियरल का स्पेशली, ठीक है। तो बिग फोर का इंटरव्यू ऐसा ही होता है, आपने जो काम किया है पूछेंगे, अमेंडमेंट्स पूछेंगे, नॉलेज चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज बिल्कुल सही है, बोलते आप सही है, सारा अपीयरेंस वाइज बिल्कुल सही है, क्वालिटी कंटेंट निकलना चाहिए, दैट्स इट। थोड़ा सा टेक्निकल और ब्रशअप कीजिए, थोड़ा सा बेसिक से चीज़ों को वो कीजिए, और जितने भी सोर्सेस है ध्यान रखो, एंड ठीक है। Plus one more thing, this interview was very well, so I want to upload it on my YouTube. This is the first video with chartered accountant that I want to upload. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो I want to share this. Sure sir, we can do that. चलो बाकी कुछ भी इशू आप उनसे पूछ लेना। I hope आपको चीज़ें समझ आएगा और ये फ्रूटफुल लगा होगा। Yes sir, sure. It was very. I'm really appreciate you taking out time, sir, and giving such an insight. Thank you so much, sir. Thanks. चलो ठीक है, हम लोग करते हैं बात, कुछ भी इशू होगा लेट मी नो। Yes. ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Good night.